ایران امریکہ جنگ بندی ختم ہونے میں صرف 3 دن باقی، مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی تاریخ بھی طے نہ ہو سکی۔ امریکی عہدیدار کے مطابق اگر ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات میں پیش رفت نہ ہوئی تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس کے سچویشن روم میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، آبنہ ہرمز کی تازہ ترین صورتحال اور ایران سے مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اجلاس سے پہلے پاکستان اور ایرانی حکام سے بھی رابطہ کیا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ امریکی حکام پاکستان میں بات چیت کے منتظر ہیں، جلد پیش رفت کی توقع ہے۔ ممکنہ طور پر ایران کے افزودہ یورینیم کو لے کر سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ روس نے معاملہ حل کرانے کی پیشکش کر دی۔ جوہری معاملے اور آبنہ ہرمز پر اختلافات ہیں۔ امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہوئی ہے لیکن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اب بھی کافی فاصلہ ہے۔ مذاکرات کی قیادت کرنے والے ایرانی سپیکر محمد باقر قالیباف نے واضح کر دیا کہ امریکہ مخلص ہے تو حکم چلانے کا انداز بند کرے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کی ناکہ بندی کو احمقانہ اور سمجھ سے بالاتر قرار دیا۔ بولے امریکہ اور اسرائیل دوبارہ جنگ نہ کرنے کی ضمانت دے۔ ایرانی سپیکر نے خبردار کیا ہے کہ کوئی غلطی کی گئی تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ روس نے ایک بار پھر ایران کے افزودہ ایٹمی مواد کو منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش کر دی۔ روسی ایٹمی توانائی ایجنسی روسٹم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بڑا مسئلہ ہے۔ روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔ 2015 میں روس نے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد کی تھی۔ اس بار بھی کردار ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آبنہ ہرمز میں دوبارہ کشیدگی کے بعد یمنی حوثیوں نے باب المندب بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ حوثی حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امن کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے رہے تو آبی گزرگاہ کو بند کر سکتے ہیں۔ ایک بار باب المندب بند کر دیا تو کوئی بھی اسے کھولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ٹرمپ اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہتر ہے ہمارے حقوق کا احترام کریں۔ صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے جنگ میں دھکیل دیا۔ امریکی عوام اس جنگ کے خلاف ہیں۔ سابق امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، کہا ایران کے خلاف جنگ کر کے صدر ٹرمپ نے امریکیوں کی جان خطرے میں ڈالی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اولڈ سٹی ایریا رام سوامی کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں، جہاں روزانہ کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ فروا علی وہاں موجود ہے، ان سے مزید بات کریں گے۔ فروا، تفصیلات بتائیے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ اس وقت بھی ہم رام سوامی کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں بھی کچھ اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں جو علاقے میں کئی عرصے سے رہ رہی ہیں۔ کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور کتنی پریشانی کا سامنا؟ 18 گھنٹے کی تو ہوتی ہے، صرف 1.5 گھنٹے دیتے ہیں۔ نہ اس میں کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ ہم اس میں پانی بھر سکتے ہیں۔ ہر چیز کی پریشانی ہے اس علاقے میں۔ نہ صرف کراچی کا یہ علاقہ بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ ایک تو کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس پہ اگر لائٹ نہ ہو تو اور زیادہ اذیت کا سامنا ہوتا ہے۔ اور رہائشیوں کا یہی کہنا ہے کہ بل بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے مزید پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ جی موسم کی بات کریں کہ ملک کے بیشتر حصوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے، یالہ باری اور برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ استور اور گرد و نواح میں نہ صرف بادل برسیں گے بلکہ بالائی علاقوں میں شدید برف باری اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم چراغ شونٹر کو بند کرنا پڑ گیا۔ سردی کی شدت اتنی بڑی کہ بالائی علاقوں میں معمولات زندگی مفلوج ہو گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے مختلف مقامات پر رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ نجی اور سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا۔ وادی نیلم میں ایک بار پھر سے رابطہ پل بہہ گیا۔ مٹی کے تودے گرنے سے پھنس جانے والے سیاحوں کی 30 گاڑیوں کو نکال لیا گیا ہے۔ شاہراہ نیلم، دواریا، شیخ بیلا اور کیل کے مقامات پر مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ NDMA کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور میدانی علاقوں میں بھی یالہ باری متوقع ہے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، ماسکو کی ایران کو افزودہ یورینیم منتقل کرنے میں مدد کی پیشکش۔ روس ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں کردار ادا کر سکتا ہے، سربراہ روسٹم نے ایسا کہا ہے۔ تکنیکی مسائل کے ساتھ امریکہ اور ایران میں اعتماد کا فقدان بھی مسئلہ ہے۔ سربراہ روسٹم کی جانب سے یہ بھی کہا گیا روس کو ایران کے ساتھ تعاون کا مثبت تجربہ حاصل ہے۔
सरबराह रूसी एटमी एजेंसी के मुताबिक 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी, तो मॉस्को की ईरान को अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने में मदद की पेशकश सामने आई है। रूस ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है। सरबराह रोस्टम की जानिब से ऐसा कहा गया है। मजीद कहा गया कि तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका और ईरान में एतमाद का फुकदान भी मसला है। साथ ही ये भी कहा कि रूस को ईरान के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा हासिल है, जबकि 2015 में रूस ने अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम की जानिब से ऐसा कहा गया है, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी उसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम ने ऐसा कहा है। मजीद कहा कि ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हुकूक का एहतराम करें। यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। हौसी हुक्काम ये कह रहे हैं, एक बार बाबुल मंदब बंद किया तो फिर कोई भी इसे नहीं खोल सकता। हौसी हुक्काम का ये भी कहना है, ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के लिए बेहतर है कि हमारे हकूक़ का एहतराम करें। तो अहम तरीन अपडेट ये है कि यमनी हौसियों ने बाबुल मंदब बंद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप अमन की राह में रुकावट डालते रहे तो आबी गुजरगाह को बंद कर सकते हैं। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी खत्म होने में अब सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सफारतकारी में एक हलचल मचा दी है। एक तरफ सदर ट्रंप आबना हुर्मस की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़िर क़ालिबाफ की ललकार भी सुनाई दे रही है कि अगर गलती की गई तो जवाब पूरी कुव्वत से मिलेगा। ईरान ने आबना हुर्मस पर कंट्रोल दोबारा सख्त कर दिया है और गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स भी मांगा जा रहा है। इस संगीन तनाज़े में सबकी नजरें अब इस्लामाबाद पर जमी हुई हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान की सालिसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने में कामयाब हो जाएगा? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पर कोई ऐसा फॉर्मूला तय पा जाएगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो? आज हम इसी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल का अहाता भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। रजा बशीर तारड़ साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। रजा साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन के हिस्से में। लेकिन रजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अहम तरीन बात यह है कि जंग बंदी ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। रजा साहब, क्या इतने कम वक्त में कोई ब्रेक थ्रू आपके नज़दीक मुमकिन है, या आप सिर्फ जंग बंदी में तोसी की कोशिश ही की जा रही है? आपके नज़दीक क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें पहली बात तो ये है कि जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं, और अगर जंग बंदी के अलावा चारा होता तो ये जंग बंदी होती ना, और अभी तक हम जो है वो जंगो जतन देख रहे होते। तो पहले तो ये ज़हन में रखें वाली बात। अब आ गया मसला कि किसको ज़्यादा जल्दी है। ईरान के लिए जो इस वक्त मसला है, उनका जो मतम नज़र है मेरे ख्याल में, वो ये है कि हम ज़ाहिर जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम हारे ना और हम मतलब मज़ीद वक्त निकाल सकें तो हमारे लिए बेहतर है। अमेरिका को जल्दी इस तरह से है कि उनके आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं और एक उनके ऊपर अंदरूनी दबाव भी है। और इसमें यह भी याद रखने वाली बात है कि दोनों साइडों ने जिसको आप कह सकते हैं ना कि सफारतकारी बजरिया सोशल मीडिया भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, तो एक प्रेशर है। अब दोनों तरफ ये है कि अगर ये नज़र आता है कि जी अमेरिका ने घुटने टेक दिए तो वो ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, रेपुटेशनल कॉस्ट जिसको कहते हैं। ईरान के लिए भी ज़ाहिर है नज़रियाती मुल्क है, एक जज्बात भी हैं और बहुत कुछ है। अब रही बात कि 3 दिन में क्या हो सकता है, तो आपने पहले भी देखा कि बिल्कुल जब मामला तबाही के दहाने पे था तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तौफीक दी और हमने देखा कि जंग बंदी हुई और उसके बाद सफारती कोशिशें हुई। तो हो तो बहुत कुछ सकता है। अब रहेगी बात कि क्या फार्मूला होगा। इसमें बहुत सारी जो है मुमकिनात हैं। अवामी जमहूरिया चीन का रोल हो सकता है, रूस का हो सकता है एक ज़ामिन के तौर पे, क्योंकि ईरानियों को ये है कि जी अगर हमने कुछ थोड़ा इसमें ले तो लाल किया तो मुमकिन है कि ये दोबारा हम पे कुछ अरसे बाद हमला हो जाए। तो जाहिर है उनको भी एक ज़मानत चाहिए कि उनके ऊपर मुसलसल ये तलवार ना लटकती रहे।
ट्रम्प साहब को कोई ऐसी चीज चाहिए कि जिसको वो अपनी पब्लिक को दिखा सकें कि देखें मैंने ये बहुत बड़ा एक मसला हल कर दिया है जो हल तलब था, 47 साल थे और मैंने वो कर दिया। जी ठीक है, ग़ालिबन राब्ता हमारा रज़ा साहब से मुनक़ता हो गया है और जैसे कि वो अपना एनालिसिस इस हवाले से जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है उस पर डेवलप कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान एक आर्ज़ी जंग बंदी ख़त्म होने में अब चूँकि सिर्फ चंद ही लम्हे बाकी हैं, अहम तरीन सवाल ये है, अहम तरीन मामला ये है कि हालात वाक़यात आगे किस जानिब बढ़ेंगे। वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होने वाली हंगामी बैठक ने आलमी सिफारतकारी में हलचल मचा दी है और एक तरफ सदर ट्रंप आबना हुर्मस की बंदिश को ब्लैकमेलिंग करार देकर सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, तो दूसरी जानिब तेहरान से बाक़ी कालीबाफ की ललकार भी सुनाई दे रही है। जी रज़ा साहब, एक तो आप काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब चूँकि सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं सीज़ फायर में, तो आगे ये बड़ा ज़रूरी है चूँकि सारी दुनिया की नज़र इस जानिब है कि आगे मामला अब किस जानिब बढ़ सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह। अब चैलेंज ये है कि इस तरह का कि जिसमें किसी भी फरीक को ये मौका ना मिले कि वो कहे कि जी मैंने फतह हासिल कर ली और दूसरे को शिकस्त फाश दे दिया। अल्फाज बहुत ज़रूरी होते हैं, ये नफ्सियाती मसाइल होते हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ ज़रूरत जज्बातियत से ज़्यादा एक जो है ना हकीकत पसंदी की है, क्योंकि जज्बात से जाहिर है कुछ देर के लिए एक मूड अच्छा होता है या जो भी एक जोश होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत बुरे नतीजे हैं। तो इंशाल्लाह जी पूरी उम्मीद रखें और ये बहरहाल इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का सलूशन होगा कि जिसमें किसी की भी वो जैसे हम कहते हैं कि बेइज्जती ना हो। बिल्कुल। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला अब इंशाल्लाह, लेकिन 3 दिन में इंशाल्लाह बहुत कुछ हो सकता है और आप देखेंगे कि कोई इंशाल्लाह अच्छा नतीजा निकले, कोई अच्छा नतीजा ही निकलेगा। रज़ा साहब ये भी कहेगा कि जैसा कि हम फार्मूला की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एक ऐसे वक्त में सालिस का किरदार अदा कर रहा है जब आप देख सकते हैं कि जो दूसरी चीज़ें हैं, सालिस का किरदार उस वक्त में अदा किया जा रहा है जब दोनों फरीक अपने सख्त तरीन मौक़िफ़ पर खड़े हैं। क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा दरमियानी रास्ता या फिर फार्मूला मौजूद है जो दोनों के लिए काबिल कबूल है? देखिए जी, इसमें पहले भी काफी साल हो गए, एक एग्रीमेंट हुआ भी था जब ईरान ने कहा कि जी हमारे पास जो यूरेनियम है उसको तुर्की भेज दिया जाए। वो लो एनरिच यूरेनियम था, उस वक्त उसका इतना लेवल ऑफ एनरिचमेंट नहीं था और अब लेकिन उस वक्त अमेरिका ने इनकार कर दिया था और ये कोशिश नाकाम हो गई। इसमें तुर्की और जर्मनी ने किरदार अदा किया था, वो उस वक्त गैर मुस्तकिल रुकन थे सलामती कौंसिल के। तो इसमें बड़े उतार चढ़ाव आए हैं और ये सब कुछ करके अमेरिका ने ये देख लिया है कि बहरहाल ईरानी जो हैं वो मुकम्मल तौर पे झुकने को तैयार नहीं हैं। और उसमें जहाँ तक फार्मूला का सवाल है तो ठीक है, अगर अभी अमेरिकी कह रहे हैं कि जी आप यूरेनियम हमारे हवाले कर दें, उसका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है। उसके साथ ही एक फौरी रिलीफ दी जा सकती है ईरान को, उनके जो मुंजमद शुदा असासे हैं उनको वागुजार करके। उसके अलावा कोई इस तरह का उनको गारंटी दी जाए कि ये नहीं होगा कि जैसे ही नेतन्याहू का मसलन केस अगर किसी बुरी तरफ जा रहा है, जो उनके ऊपर एक रिश्वत सतानी का केस चल रहा है, तो वो फरमाइश करें कि जनाब ये जरा क्यों ना हम 1-2 हमले और कर दें। तो ये मुनासिब नहीं है, ये कोई बचगाना खेल नहीं है। आपने देखा है कि ये जो एक तरह से मजाक में बात शुरू हुई, इनका ये ख्याल था कि चंद घंटों में ईरानी बिल्कुल जो है ना अपने घुटनों पे चले जाएंगे, वो नहीं हुआ और उसका खमियाजा सारी दुनिया ने भुगत रही है, मजीद भुगतेगी। अगर इसका मसला हल नहीं होगा तो फिर मेरे ख्याल में जो जिस तरह आलमी मईशत हम इस वक्त देख रहे हैं उस तरह नहीं रहेगी। फिर उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी बदलेगा मिडल ईस्ट का, ये वो। और उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि अमेरिका की जाहिर है जो है ना वो साख को भी जद पड़ेगी